Hassan Bakshi sir. So given the future, there are challenges, a lot of challenges, but there are opportunities as well. Urbanization is a big challenge, yet there are a number of challenges that the developers and builders are facing. Land titles, clean land titles, various issues in the governance, regulatory bodies, to name some is corruption, payments that you did not cater to in your calculation maybe, or you cannot mention that. Please enlighten us about those challenges and how you foresee the future. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me here. I am representing builders and developers of Pakistan, and Abad is the body. We have more than 14 and 1500 builders who are working throughout Pakistan, and these are the regulated business doers in Pakistan. I was sitting here and seeing few presentation, and was very impressed after seeing those presentation. Anyhow, I would like to share some of my own thoughts. Here we were talking about management of buildings, how to save load and extra codes, etc., etc. But on ground, I would rather say the builders live every day. We cannot plan for 2 years. None of our, majority of our players are nowhere close to the construction activities going, I would not say in the developed world, but probably in the countries like Turkey, Dubai, and other things. There are no finances available for a first-time buyer to buy houses, to buy flats. Cost of financing is 24%. So how do you expect people to buy an apartment from any of the regulated builders? So they are forced to go to those Kachi Abadis or semi-Kachi Abadis maybe to go and find their living. Cost of construction material, you cannot plan. The parity between Pak rupee and dollar, none of our members is now coming up with a vertical building since last 6 months, because they cannot calculate the cost of construction maybe after 6 months or year back. Nobody knows what will be the price of the dollar after 6 months or probably a year. So everything has come to a standstill. 60% of the projects which were ongoing in Pakistan, I'm not talking about only in Karachi, and which were sold for less than 8,000 rupees per square feet, are almost on a standstill, on a hold. They are stalled because the cost when they started, the dollar was around 140 to 150 rupees per dollar. Now it is almost to 280 to 90 rupees. So nobody had built that cost inflation in the projects. So when I listen to all these presentation, I feel कि यार ये बिल्कुल हमारे मुल्क में भी होना चाहिए जैसे दुनिया में हो रहा है. बट जब हम यहाँ से निकलते हैं इस कमरे से, जहाँ का टेम्परेचर भी शायद 16 डिग्री पे कंट्रोल चल रहा है, तो बाहर ऐसे थप्पड़ लगते हैं कि हमें याद आ जाता है कि ये बिल्ड एशिया का कन्वेंशन यहाँ तक ही है. एक बिल्डिंग कंट्रोल इंस्पेक्टर जिसका 14 ग्रेड हो, वो 22 ग्रेड के डीजी को ट्रांसफ़र करे, वो 22 ग्रेड के डीजी को नौकरी पे लगाए या उसकी छुट्टी करे, उस शहर में, उस मुल्क में, उस सूबे में आप परफेक्शन की बात करते हैं? कहाँ से करेंगे? जहाँ पर कानून ये हो कि 120 गज से 1947 से कानून है, 120 गज से ऊपर का कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून है. 1947 से आज तक एक प्लॉट ऑक्शन नहीं हुआ. वहाँ पर आप साफ टाइटल की बात करेंगे? बिल्डर तो लेता है, अपना एनओसी पास कराता है, दूसरे दिन दूसरा मालिक हो जाता है. वो एक पेपर ले आता है, बोलता है भाई 10 करोड़ रुपए हमें दे दो, 20 करोड़ रुपए देके नक्शा पास कराओ, फिर वो खड़ा होता है कोई ना कोई. तो देखिए ग्राउंड रियलिटी जो है ना, वो हमारी बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ये दोनों हमारे राइट लेफ्ट हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं, कोर्ट्स की बात हो रही है. कोर्ट्स करेगा कौन इम्प्लीमेंट?
बुक्स पे तो मेरे ख्याल में सरोज साहब ने बना दिए होंगे, इन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी, पर जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको एक एक आदमी को अगर एक जिसकी तनख्वाह लाख रुपए महीना है उसको 2-2 करोड़ रुपए चाहिए तो हो नहीं सकता कुछ। आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, मतलब हम, दिस इज़ माई सेकेंड जनरेशन इन बिजनेस हियर इन पाकिस्तान, आई वॉज बॉर्न हियर, ब्रॉट अप हियर, स्टडीड फ्रॉम हियर, कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। देखिए हम इस कमरे में बैठ के तो चीज़ें सही करने की बात करते हैं, पर इर्द गिर्द तो देखिए माहौल, सामने केडीए की बिल्डिंग में जाके अपना एक म्यूटेशन तो करवा ले, कोई एक म्यूटेशन करा ले, मैं एक बिल्डिंग का नक्शा पास करा ले, सामने वाटर गैस का वाटर बोर्ड का दफ्तर है, पानी का कनेक्शन तो ले लें। ये तो सब बातें ऐसी हैं कि मतलब ठीक है हम यहाँ आते हैं, सूट भी पहन लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, पर ग्राउंड रियलिटी तो बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी जब बिल्डिंग शुरू होती है तो उस बिल्डर की पहली ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरह ये बिल्डिंग मुकम्मल कर ले, इससे पहले कि कोई 2 नंबर का आदमी जाके कोर्ट से स्टे नहीं ले ले और वो 5 साल बिल्डिंग फंसी रहे। उसके बाद उसकी ख्वाहिश ये होती है कि कस्टमर को ये बेच दे और उस पैसे से बिल्डिंग बना ले। कस्टमर भी आज मतलब वो भी मजबूर है, वो घर का फूड का इन्फ्लेशन देखे, वो अपना एनर्जी का इन्फ्लेशन देखे, वो बच्चों की फीस देखे, बच्चों का मेडिकल देखे। आज जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए है ना, शायद वो भी एक 3 करोड़ का फ्लैट नहीं ले सकता। कितने लोगों की तनख्वाह 5 लाख रुपए है? आज कौन सी बिल्डिंग आप रेगुलेटेड बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए से कम कराची शहर में बना सकते हैं जहां लैंड वैल्यू इतनी बढ़ी हुई है? चंद लोगों ने लैंड को कब्जा किया हुआ है, और जहां से लैंड आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, वो वहाँ के जो करते धरते हैं उनके ड्राइवर, उनके चौकीदारों, उनके खानसामों को लैंड अलॉट करती है 50 रुपये गज से, और वो बिकता है 50,000 रुपये गज में। तो बात तो हकीकत है, नहीं बोलेंगे तो फिर भी सबको तो मालूम है। बट मेरा ख्याल है हमने बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी चाहिए, हर फोरम पे बात करनी चाहिए कि शायद इन लोगों में कोई एक आदमी ऐसा बैठा होगा जो कहीं जाके बात करेगा और ये बात सुनी जाएगी। वरना आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात हैं, लोग या तो डॉलर में पैसे रख रहे हैं या गोल्ड में पैसे लग रहे हैं। 1.5 घंटे पे आपके दुबई है, वहाँ जाते इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न भी आपको डॉलर में मिल रहा है या उस करेंसी में मिल रहा है। ना कोई कब्जे का डर, ना कोई 2 नंबरी का डर। 4% टाइटल ट्रांसफ़र की कॉस्ट है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में 20% है ट्रांसफ़र की कॉस्ट अगर वो फाइलर नहीं है, 20%। सो कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? और हमारा मॉडल तो ये है कि हम प्लॉट लेते हैं, नक्शा पास कराते हैं, बेचते हैं, एडवांस सेल से बिल्डिंगें बनाते हैं। और आज जैसी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं कराची में, जो रेगुलेटेड बिल्डिंगें हैं, ये कराची के बिल्डर ने, और अब लाहौर में और इस्लामाबाद में जो बन रही हैं पाकिस्तान के बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने बनाई है ना। बट अब आप किसी से भी पूछें, लोगों की हिम्मत अब जवाब दे गई है। इसलिए जवाब दे गई है कि जहाँ कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, जहाँ कोई पॉलिसीज़ में कंटिन्यूएशन नहीं। इमरान खान के दौर में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री प्रायोरिटी थी, मैं उनकी टास्क फोर्स का मेंबर था। हर मंगल को जनरल अनवर हैदर साहब जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मीटिंग करते थे, हर बुध को स्टेट बैंक का गवर्नर मीटिंग करता था, और हर थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करता था। वो समझता था कि ये हाउसिंग चलेगी तो बाकी अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी। उस 2 साल के बाद एक मीटिंग नहीं हुई है, तो ये प्रायोरिटी है। उसके दौर में 5% पे इंटरेस्ट पे लोन दिया गया उन लोगों को जो पहला मकान ले रहे थे, 5 साल का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट था। आज 25% पे कौन ले सकता है? तो मैं ये समझता हूँ ये चंद हकीकत है। अगर गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को चलाना है तो मैं इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन इम्पार्शली होना चाहिए। जो रेगुलेटर्स बैठे हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पूरे पाकिस्तान में रेगुलेटर्स और स्पेशली सिंध में कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये पिकेटपी वाले बैठे हैं, हमने एक बड़ा अच्छा मॉडल बनाया और इनको कहा कि आप ही नक्शे पास कर दिया करें उस दौर में, और तो इन्होंने कहा और उसको चेक भी आप करें कंप्लीशन पे। तो पिकेटपी वालों ने हमें ये कहा कि यार बात तो सही है, पर इसमें इतने उल्टे सीधे लोग इस बिल्डर लाइन में इन्वॉल्व हो गए हैं, हम तो अपने लिए भी डरते हैं। और ये हकीकत है कि इतनी लॉलेसनेस हो गई है,
कोई कानून ही नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, तो ये जो मेरे राइट लेफ्ट पे है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ये अभी आप देख लें, कुछ साल बाद नहीं दिखेंगे आपको। ये लोग क्योंकि कर ही नहीं सकते काम। कल मैं एक साहब के साथ बैठा था जो क्लिफ्टन में ब्रिज उतरते हुए 50 स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हसन ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट है और 50 साल से काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ काम कैसे होगा? सब मतलब अगर कानून हो तो होगा तो काम होगा ना। मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, फर्ज करें 0% वायलेशन पे, या ये बना रहे हैं, चले मैं नहीं बना रहा हूँ, और मैं 100% पे बनाऊंगा तो मैं तो ये प्लॉट ही नहीं खरीद सकते मेरे सामने। तो देखिए कानून तो बहुत हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। और अगर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है तो ये जो जनरल आसिम मुनी ने SIFC बनाई है ना, इसमें डालना पड़ेगा। और कोई, क्योंकि जनरल के अलावा कोई मॉनिटर कर नहीं सकता मेरे ख्याल में पाकिस्तान में, अब हम थक गए हैं। वही मॉनिटर करेंगे तो चीज़ें सीधा होंगी और सीधी चलेंगी। जी थैंक यू। थैंक यू। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर ये बिल्डिंग इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आई थिंक ये इसका हम टेक अवे। और